गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच on the topic of class 9th chapter 1 number system, and the topic is how to represent this decimal number on number line. Okay, so here we comes. So first of all we will draw a number line. I've already mentioned you how to draw number line. That is 0. This one is 1, 2, 3 and 4, and to the left of 0 that will be -1, -2 and likewise. Okay. Now first of all we have to understand that the value is 3.895. So this will locate, obviously this value is greater than, first of all see that this value 3.895 is obviously greater than what? 3 but less than 4. So obviously this value lies between 3 and 4. Okay, 3 and 4. Okay, so just 3, take this one as a 4. Okay, just magnify this one. Actually we are just doing magnification of this division. So we'll take the second step. We'll draw the line, number line, likewise. Okay, and here comes 3 and here comes 4. Okay, now we divide this, the division between 3 and 4, the gap between 3 and 4 into 10 equal parts, and 10 division. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this one is 10. 1 तो देखिए this one is 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and this is 4.0. Okay, now comes to the second one. This is 8. So the value, obviously this one lies between 3.8, this one, and this one. Means this value must lies, this value must be greater than 3.8 but should be less than 3.90. Okay, so the second, after second, this one will be our third step. This one will be 3.8 and it can be represented at 3.80. एक डेसिमल प्लेस तक हमने काम कर लिया इस स्टेप में. अब मैं दूसरे डेसिमल प्लेस पे जा रहा हूं. तो 3.80 तो यहां पे हो जाएगा 3.90. फिर से हम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. ओके, सो 3.81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और दिस वन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा हम इक्वल के कारण से थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं. So this one 3.81, 82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88,
3.89. Okay, and 3.889 and 3.90. Okay, that's it. So the second one is 95. So this one obviously lies between 3.89 से 3.90 के बीच में. तो हमारा जो लास्ट वाला होगा it will be something like this. ये हमारा लास्ट. इसको यहां पे कर लेते हैं इस तरह से. ठीक है, तो हम किसको मैग्नीफाई किए हैं? 3.890 और यहां पे हो गया 3.900. तो 3.891, 892, 893, 894, 895, 3.895, 896, 897, 898, 899 और 390. So this one will be, यहाँ पे graduation करते थे marking 391, 3.3, sorry 891, 892, 3.893, 3.894, 895. This is हमारा required point हो जाएगा 895, 896, 897, 898, 899. This is how we can represent the decimal numbers up to 3 decimal place on the real number line. So how many steps are there? 1, 2, 3 and 4. How many total digits are there? 1, 2, 3, 4. 4 डिजिट है, तो 4 लाइन आपका इसमें ड्रॉ होगा और फाइनल वाला दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूं. ओके, थैंक यू. अब मैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं. इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप सेल्फ बना सकते हो. आपके एनसीईआरटी बुक में भी विजुअलाइज है. रिप्रेजेंट का जगह वहां वर्ड क्या है? विजुअलाइज. विजुअलाइज का मतलब यू हैव टू रिप्रेजेंट द सेम. ओके, मैग्नीफाई किया हुआ है. आप बुक में देखोगे तो कुछ इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास करके वो बना. तो बात एक ही है. Now the second question that we are going to discuss related to this one, the question will be like this. इसी टाइप का क्वेश्चन है. Visualize, ठीक है, visualize 2.32 पे बर्न on number line up to 4 decimal place. 4 decimal place तक आपको बोल दिया है. यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना है कि 2.3 और ये रिपीटेड है 1, 2, 3. ऐसे तो बहुत सारा चलते चला जाएगा, लेकिन आपको 4 प्लेस पर 1, 2, 3, 4 प्लेस पर करना है. ओके, तो आप यहां पे आप देख सकते हो लाइकवाइज द प्रीवियस क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 यानी लाइन सेगमेंट यहां टोटल कितना बनेगा? टोटल नंबर लाइन कितना बनेगा? 5 लाइन बनेगा. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. हम फिर से स्टार्ट करते हैं. हम भूल जाते क्वेश्चन क्या था. पहला वाला ही क्वेश्चन के टेक्निक पे चलते हैं. फर्स्ट स्टेप, जीरो, 1, 2, 3, 4. So -1, -2. Okay, so this value obviously is greater than 2 but less than 3. यानी इसका वैल्यू कहां पे ना लाई होगा? यहां पे लाई होगा. तो यही यहां पे किताब जो है इस तरह से करके ये इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास बना देता है. ये जो है हम बना देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की. पहले जो है इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं.
ठीक है। ये एक्सटेंडेड करके ये वाला हिस्सा मेरा कितना हो गया बाबू 2 एंड दिस वन बिकम्स हाउ मच 3। ओके ओके, यहाँ पे विजुअलाइज कर दिए हम लोग, यहाँ पे लगा दिए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है, छोटा चीज को भी बड़ा बड़ा करके दिखते हैं। तो यहाँ पे आपका छोटा 10 डिवीजन है, ठीक है, तो इस छोटे 10 डिवीजन को हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए तो बड़ा हो गया। 3 का मतलब 3.0, 2 का मतलब 2.0। इसको 10 पार्ट में बांटेंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.9 और ये हो गया आपका 30। हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हम पूरे ग्रेजुएशन को नहीं लिखा है। आप देखिए 2.3 और ये हो गया 2.4। अगला वैल्यू जो है 2.32 है, तो ये किसके किसके बीच लाई है, ऑब्वियसली 2.3 और 2.4 के बीच में। ओके, जगह कम है, इसको थोड़ा सा और दूर तक ले जाएंगे, ऐसे 10 पार्ट में अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका 2.40 और यहां से और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम लोग, ये हो गया आपका 2.30, 2.31, 2.32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। हो गया ना। 2.32, 2.33। अब अगला जो वैल्यू है 2.32 के बाद उनका नहीं है, फिर 2 है, यानी कि अगला वैल्यू यहां और इसमें लाई करेगा। सब लोग को क्लियर हो रहा है? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसको और थोड़ा लंबा कर देते हैं, 10 पार्ट अच्छे से हो जाएगा। 330 2.321, 2.322, 2.33, 322, 2.323। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह से करते करते 6 7, आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा जगह कम गया है, 8 चलिए 10 पार्ट में हो गया, ठीक है। तो अब हो गया मेरा 2.322, तो कितना 1 2 3 4, एक और चाहिए तो 2.32, तो 2.32 कहां गया, 2.32 से इसके बीच होगा, तो लास्ट हमारा ये हो गया आपका 10 पार्ट में इसको बांट देते हैं, इसको ब्लैक से कर देते हैं, ऐसे आप लोगों को क्लियरली लगेगा। ये हो गया आपका 2.3220 और यहां हो जाएगा 2.3230। हो गया। अब आइए 2.3221, 2.3222 हो गया ना। यही हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड नंबर। इसको 10 पार्ट में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में हो गया। नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर। यही हो गया आपका विजुअलाइजेशन। देखिए विजुअलाइजेशन यहाँ पे यही कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास बना दो भैया और बड़ा कर दिया, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास बनाओ और इसको गहराई से देखेंगे और इसको गहराई से देखेंगे। तो अब हमको जो है देखिए यहाँ से चलते हैं फिर से। देखिए यहाँ भी कोई डिवीजन हमको नहीं दिख रहा था,
मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद हमको 1 डिवीजन दिखने लगा 10 पार्ट में 2.3, 2.0, 2.01, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसा दिख गया। ठीक है, अब इसका पावर और बढ़ा दिए हैं तो एक डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखने लगेगा, जैसे 2.30, 31, 32, 33 और पावर बढ़ा दिए तो 2.321, 322, 323 और पावर बढ़ा दिए हैं, इसका पावर और बढ़ा दिए हैं तो देखिए अब हमको 4 प्लेस तक दिखने लगा। कहां 1 प्लेस तक भी नहीं दिख रहा था, अब 1 प्लेस दिखा, फिर 2 प्लेस दिखा, फिर 3 प्लेस दिखा, फिर 4 प्लेस आपको दिख गया। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द टर्मिनेटिंग डेसिमल on real number line or non-terminating but repeating, that is recurring. You can easily represent on real number line. So ये क्लास 9th का बेसिक टॉपिक था, ये आज आप लोग को हो गया है। तो आज सभी लोग इसी से रिलेटेड होमवर्क को करेंगे, ठीक है, और अच्छे से उसको फेयर में नोट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।